Hello everyone. Today we are going to discuss various types of numbers. This video will be helpful in your exams. And being a mathematics student, you should know what are these numbers and how these are useful in your life, in your paper, obviously in math subject. Natural numbers. Natural numbers generally start for the counting numbers that begin from the number 1, 2, 3, 4, 5, 6. They end at infinite value, means there is no end for the natural numbers. In natural numbers, numbers will begin from 1, but they will never end. They will continue till infinite. This sign is commonly used for infinite. I will upload a video in which you will learn about the various mathematical signs. Okay. Next we will move to the whole numbers. Whole numbers are all the natural numbers including 0. All the natural numbers including 0. Means here in whole number smallest number is 0, but in natural number the smallest number is 1. One thing to be noticed that in natural numbers or whole numbers or any numbers, it is difficult to find the last numbers. So we provide them this infinite sign. I have already told that this is known as infinite sign, right? So we cannot find the biggest whole number or the biggest natural number. But for your knowledge, always remember that 1 is the smallest natural number, or the natural number always begin with 1, and in whole numbers 0 is the smallest number. Now come to the integers. A little bit more ahead, plus opposite of natural numbers. Set of all whole numbers. जितने भी whole numbers हैं हमारे पास, this one plus opposite of natural numbers. ये जो हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े, इनके अपोजिट कैसे बनेंगे? नंबर्स में हमेशा याद रखो कि जब भी हमें किसी भी नंबर का अपोजिट बनाना हो ना, वी असाइन देम अ माइनस साइन. Generally we are studying about the 4 operations in maths: plus, minus, multiply and divide. Plus and minus are opposite of each other, multiply and divide are opposite of each other. When we are talking about the opposite of a number, that means it will be given a negative sign. So 1 का opposite -1, 2 का opposite -2, or 2 with a negative sign. Opposite of 3, -3. What is the opposite of 0? What is the opposite of 0? 0 is a neutral number. It doesn't contain any opposite. Also, it is already written that opposite of natural number. 0 is not a part of natural number. So we will never give a negative sign to 0. This notation is completely wrong. 0 will never be given a negative sign. It is wrong. 0 has no sign. It is neither positive nor negative. It is neutral. It can be asked, what is the sign of 0? Then you will always tick on the neutral number. 0 is a neutral number. Now come back to the integers. Integers are all the whole numbers, means all the numbers that are beginning from 0 plus opposite of natural numbers, and all the numbers that begin with 1 with their opposite sign. So how we will write them? We will write them like -3, -2, -1, 0, right? One thing to be remembered here, the biggest the negative number, the smallest it is. The smallest its value is. All numbers plus opposite of natural numbers, right? -3, -2, -1.
जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होगा उतनी ही छोटी उसकी वैल्यू होगी। मीन्स -100 इज स्मॉलर देन -1, -200 इज स्मॉलर देन -100। जो भी नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। तो अब हम ज़ीरो के बाद क्या लिखेंगे? ज़ीरो के बाद हम लिखेंगे 1 2 3 4। This is only the introductory video. Number 1. Is 0 a natural number? Comment down and below. What are whole numbers? All the numbers that are beginning with 0 are whole numbers. They include all the natural numbers. Also tell me, what is the another name of natural number? What are they called? Also we have discussed about the integers. In this video, we are going to discuss about the common numbers that we use daily in our life and that are very important, like even numbers, odd numbers. If you have any doubt related to the natural numbers, whole numbers and integers, you can check the previous video. In this video, we are going to discuss these numbers: even numbers, odd numbers, prime numbers, composite numbers. As you have already seen the introduction of numbers, the numbers, some numbers are beginning with 0, some numbers are beginning with 1. Generally, these are the characteristics we assign to the numbers. These are characteristics we assign to a number. Means, what is the nature of a number? Is the number even or the odd? Are the numbers prime, composite? These are their characteristics. Each and every number in our counting are composed of these characteristics. So let's discuss how they are used. Classes or the classes, smaller classes, or in your junior sections, you have learned that even numbers, numbers beginning with, or the numbers having their last digit as 0, 2, 4, 6, 8. Any number having these as their last digit. Any number having these as their last digit, right? Any number having these as their last digit are the even numbers. What is the another property of these numbers? All the even numbers are divisible by 2. All the even numbers are divisible by 2. Means if any number is divisible by 2, then it is a even number. So it is very easy to recognize all the even numbers. Now what are odd numbers? 1 to 10 की काउंटिंग सबको आती है, राइट? 0 से स्टार्ट करते हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ध्यान से देखना, हमने बोला कि जिन डिजिट्स के पीछे 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा, वो सब क्या होंगे? वो सब इवन नंबर्स होंगे. अब जो नंबर्स हमारे पास बच गए, 1 3 5 7 9, what are these numbers? These numbers are odd numbers. These numbers are odd numbers. Means any number having 1 3 5 7 9 as their last digit. If you want to write this, you can write. Then we will move to the odd numbers. Okay, talking about the odd numbers, let me erase it. I am discussing with you the odd numbers, na? So any number having 1 3 5
7, 9 as their last digit. As their last digit. Any number having 1, 3, 5, 7, 9 as their last digit, they will be regarded as odd numbers. Now, as we will move ahead, our discussion will take some. चलिए पढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं साथ के साथ ही। पहले बोल देना कुछ सही नहीं होगा। आगे आते हैं हम प्राइम नंबर्स पर। इनके कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। ये क्या था? नंबर्स हैविंग 0, 2, 4, 6, 8 as their last digit. Numbers having 1, 3, 5, 7, 9 as their last digit. What are prime numbers? Prime numbers are those numbers that do not have any factor. Any number having only two factors. Now you will ask, ma'am, what are factors? We will discuss about the factors and multiples in another video. Any number having only two factors means ऐसा नंबर जो किसी के टेबल में ना आए, except that is only the number 1 and the number itself. ऐसा नंबर जो अपने खुद के और एक के अलावा किसी और के टेबल में ना आए। अपने खुद के और एक के अलावा किसी और टेबल में ना आए, वो प्राइम नंबर्स बन जाएंगे हमारे। वो क्या बन जाएंगे? प्राइम नंबर्स। एनी नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज ओनली 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जरा हम अपनी काउंटिंग में चेक करें कौन कौन से ऐसे नंबर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जरा चेक करिए 1 के कितने फैक्टर्स होंगे। 1 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, तो 1 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। 2 1 के टेबल में भी आता है और 2 अपने टेबल में भी आता है। 2 1s are 2 and 1 2s are 2. Similarly 3 1s are 3 and 1 3s are 3. 4 किस किस के टेबल में आएगा? सोचिए। 1 4s are 4, 2 2s are 4, 4 1s are 4, मतलब वो तो बहुतों के टेबल में आ रहा है। 5 1 5s are 5 and 5 1s are 5. 7 1s are 7, 1 7s are 7. Okay, before moving ahead, let us discuss about what are factors and multiples. So class, let's continue our discussion. Earlier we have discussed various types of numbers. In that we were discussing about factors. So continue this. What are factors? The factors are the numbers that are multiplied to get a given number. ऐसे numbers जो किसी को multiply करने पर आते हैं। The numbers that are multiplied to get a given number. कोई एक नंबर आपको गिवन है, अगर आपने उसको मल्टीप्लाई करा है कि वो नंबर कैसे आया, तो वो उसका फैक्टर हो गया। जैसे हम अगर यहाँ पर 12 की बात करें, तो 12 किस किस के टेबल में आएगा, वो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। यहाँ पे सिंपल सी बात हमें ये देखनी है कि वो किस किस के टेबल में आएगा। जो भी नंबर किसी के भी टेबल में आ जाएगा वो उसका फैक्टर बन जाएगा। जैसे हम 12 का डिस्कस कर रहे थे, 12 comes in the table of 1 and 12. 1 multiplied by 12 are 12. 2 multiplied by 6 are 12. 3 multiplied by 4 are 12. Means 12 comes in the table of 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Except these numbers, there are
देर आर नो नंबर्स दैट विल गिव द नंबर 12 ऑन मल्टीप्लाई। इन नंबर्स के अलावा ऐसा और कोई नंबर नहीं होगा कि उनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 12 आ जाए। तो ये सारे नंबर्स जो हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है, ये इसके क्या बन जाएंगे, ये इसके बन जाएंगे फैक्टर्स, ये इसके बन जाएंगे फैक्टर्स। तो देखो, जैसे काउंटिंग हमारी इनफाइनाइट तक चलती थी, हम बोलते थे ना कि कोई भी काउंटिंग है 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 6, तो हमें उसका एंड नहीं पता होता था, तो वो इनफाइनाइट तक जाती थी। सिमिलरली जिस नंबर का हमें एंड पता हो, जैसे 12 के फैक्टर्स का एंड है, ठीक है, 12 के फैक्टर्स का एंड है वो खुद नंबर, तो मतलब वो उतने ही हो जाएंगे। तो मतलब हम फैक्टर्स को काउंट कर सकते हैं। फैक्टर्स आर ऑलवेज काउंटेबल, फैक्टर्स आर ऑलवेज काउंटेबल, फैक्टर्स आर ऑलवेज काउंटेबल। इन्हें हम हमेशा गिन सकते हैं और ये फ्यूअर होते हैं। देयर विल ऑलवेज बी फ्यूअर फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर जिनको हम काउंट कर पा रहे हैं वो फ्यूअर है, वो बहुत कम है, क्योंकि वो काउंट हो सकते हैं। जो चीज़ काउंट नहीं की जा सकती वो अनकाउंटेबल हो जाती है। तो हमेशा ये बात याद रखना, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर काउंटेबल। और एक और क्या बात थी, फैक्टर्स क्या हैं, जो नंबर किसी के भी टेबल में आ रहे हैं। अ नंबर दैट कम्स इन एनी टेबल, दैट आर इट्स फैक्टर। Come to the multiple. Multiple of a number is the result of multiplying that number. Multiplying of a number means multiple of a number is the result of multiplying that number by another number. Multiple क्या होता है, किसी भी नंबर का जो रिजल्ट आता है कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, किसी भी नंबर जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, जो कोई भी नंबर आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो भी रिजल्ट आ रहा है वो उसके क्या बन जाएंगे, मल्टीपल्स बन जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल्स आर जनरली द टेबल्स, मल्टीपल्स आर जनरली टेबल्स, जनरली टेबल्स। दीज आर अनकाउंटेबल, दीज आर अनकाउंटेबल। जैसे हम फैक्टर्स को काउंट कर सकते हैं क्योंकि वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हम मल्टीपल्स को काउंट नहीं कर सकते, वो ख़त्म होंगे ही नहीं। उनको जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। जैसे 3 के मल्टीपल्स, मतलब हमें 3 का टेबल चाहिए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। आप बोलोगे मैम 3 10 ज़ा 30, इसके बाद तो हमने कुछ करा ही नहीं है, टेबल 10 तक की तो याद करते हैं हम। तो बच्चे आगे भी तो टेबल हो सकते हैं, 3 को आप 11 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 11s are and 11 3s are both are same. Similarly 3 12s are 36, 3 13s are 39। इस तरीके से नंबर तो कभी ख़त्म होंगे ही नहीं, ये मल्टीपल्स वाले नहीं होंगे ना। 300s are 300, 3 lakh are 3 lakh, 3 multiply lakhs are 3 lakh। तो टेबल्स कभी ख़त्म नहीं होते, तो इसलिए मल्टीपल्स अनकाउंटेबल हो गए। कभी भी मल्टीपल्स कम नहीं होते, हमेशा ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन फैक्टर्स कम होते हैं, काउंटेबल होते हैं। फैक्टर्स क्या होंगे, जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें वो नंबर वापस से मिल जाता है, तो जिन दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करा है, जिन दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करा है, ये सारे के सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है वो उसी का फैक्टर है ना। देखो, एक और तरीके से आप अपनी कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हो फैक्टर्स और मल्टीपल्स की। सपोज करो मैंने यहाँ पर टेबल लिखा, 6 का टेबल लिखा है, 6 1 ज़ा 6। ठीक है, तो ये 6 का फर्स्ट मल्टीपल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, वन ऑफ द मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6, या फिर हम इसे बोलेंगे ये 6 का फर्स्ट मल्टीपल है, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, अब
6 कैसे आया? 6 किन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया? 6 को मल्टीप्लाई करके आया, 6 1 जा 6, या फिर 1 6 जा 6। 1 के टेबल में भी 6 आ रहा है और 6, तो यहाँ पर 6 भी फैक्टर हो गया, 1 भी फैक्टर हो गया। ठीक है, अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 6 2 जा 12, तो 12 के फैक्टर्स क्या हो गए? 6 और 2, ये इसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। और 12 यहाँ पर क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया? दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आता है, ठीक है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट आता है, और जिन दो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो उसके फैक्टर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फैक्टर्स बन जाते हैं। आई होप आपके फैक्टर्स और मल्टीपल्स की कंफ्यूजन क्लियर हुई होगी। तो हम अपने नंबर्स की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया था? हमने ओड और इवन नंबर पढ़ लिया था। अब हम आते हैं प्राइम नंबर्स पर। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? अब हम आते हैं प्राइम नंबर्स पर। फैक्टर्स और मल्टीपल्स को पढ़ने के बाद एक बात हमेशा याद रखो, जिन नंबर्स के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, ओनली 2 फैक्टर, and what are those factors? Those factors are, first of all, the number itself, जो नंबर गिवन होगा एक तो वही उसका फैक्टर होगा, and the second thing is 1. If a number is having only these two factors, only 2 factors, if a number is having only these 2 factors, then that number is prime number. Come to the composite number. We will discuss the examples after this concept. Composite numbers. A number having more than 2 factors means a number having 3 or more than 3 factors, or a number having more than 2 factors. More than 2 factors. A number having more than 2 factors, then they are regarded as composite numbers. अब कैसे होगा? देखो, कोई भी नंबर के या तो 3 फैक्टर्स होंगे, 2 से ज़्यादा का मतलब हुआ 3 फैक्टर्स होंगे, 4 फैक्टर्स होंगे, या काउंटेबल हैं कितने भी हो सकते हैं, और मोर देन दैट। ठीक है, और more than that, then they are regarded as composite numbers. Now let us discuss the examples of prime numbers and composite numbers. Examples of prime numbers and composite numbers. Examples. ठीक है, हमने एक प्राइम नंबर पढ़ा और एक कंपोजिट नंबर पढ़ा। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? दी काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अभी हम इसी में से ही अपने प्राइम और कंपोजिट नंबर ढूंढेंगे। ठीक है, इसी में से ही हम प्राइम और कंपोजिट नंबर ढूंढेंगे। प्राइम नंबर की डेफिनेशन थी अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम की डेफिनेशन क्या थी? ओनली 2 फैक्टर्स, राइट? तो इसमें से ढूंढते हैं, हाउ मेनी फैक्टर्स डज 1 हैव? 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, 1 1s are 1। इसके अलावा क्या 1 किसी और के टेबल में आता है? नहीं आता, है ना? तो 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। 2 पर आ जाइए। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 2? 1 2s are 2। दो ही फैक्टर्स हैं, एक तो नंबर 1 और एक नंबर 2, मीन्स नंबर इटसेल्फ एंड द नंबर 1। सो दिस विल बी रिगार्डेड एज प्राइम नंबर। ये क्या हो जाएगा? 2 इज अ प्राइम नंबर। आगे आ जाइए। नेक्स्ट इज 3।
3 किसके टेबल में आता है? 3 1 के टेबल में आता है। 1 3 जार 3। और अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें 3 1 जार 3, 2 1 जार 2 भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसके क्या फैक्टर्स हो गए? 1 और 3। क्या 3 इनके अलावा किसी और टेबल में आ रहा है? सोचो, नहीं आ रहा भाई। 3 का और कौन सा टेबल होगा? नहीं आ रहा। तो फिर ये भी क्या बन जाएंगे हमारे पास? प्राइम नंबर्स। व्हाट विल बी दे कॉल्ड? प्राइम नंबर्स। आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर्स, एक ही नंबर है ना, तो नंबर होगा, नंबर्स थोड़ी होगा। चलिए 4 पर आ जाओ। What are the factors of 4? Means 4 किस किस के टेबल में आता है? 4 comes in the table of 1, 1 4s are 4. 4 comes in the table of 2, 2 2s are 4. 4 comes in the table of 4, 4 1s are 4. Means 4 is coming in the table of 1, 2 and 4. So these are all its factors, right? So 4 will be regarded as composite number. 4 क्या बन जाएगा हमारा? composite number. यहाँ तक क्लियर है? अभी हम हर नंबर के लिए डिस्कस करेंगे। come to the number 5. how many factors this 5 has? 1 5s are 5 and 5 1s are 5. both the notations are same. you can write it for ones also, क्योंकि कोई भी नंबर के दो, जब कोई भी नंबर जो है, जो प्रोडक्ट आ रहा है हमारा, जब वो दो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों उसके क्या बन जाते हैं? फैक्टर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर 1 और 5 दोनों फैक्टर्स हो गए, ठीक है। सो इट विल बी रिगार्डेड एज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। चलिए आगे बढ़े। आ जाइए, अब हम 6 पर आते हैं। 6 पर आते हैं अब हम। सिक्स के लिए कैसे लिखेंगे? 1 6 are 6, 2 3s are 6, 3 2s are 6 and 6 1s are 6. Count the number of factors now. 1 2 3 4. How many factors does 6 have? 4. 4 तो 2 से ज़्यादा ही होते हैं, तो फिर ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएगा हमारा composite number. So 6 will be a composite number, right? 7 पर आइए। We will discuss about number 7. 7 1s are 7 and 1 7s are 7. दोनों के लिए 7 ही आता है ना? तो यहाँ पर कितने फैक्टर्स हो गए इसके? देखो जरा ध्यान से। 1 2. A number having only 2 factors. A number having only 2 factors, then it will be regarded as prime number. तो इसको लिख दीजिए। तो 1 and 7 are the its only factors, so 7 will be a prime number, right? Come to the number 8. चलिए बताइए 8 किस किस के टेबल में आता है? 8 comes in the table of 1. हमेशा याद रखो एक बात, कोई भी नंबर हो ना, वो अपने और खुद के 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा। कोई भी नंबर अपने खुद के टेबल में और 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 1 के लिए क्या हो गया? 1 8s are 8, सॉरी 8 के लिए क्या हो गया? 1 8s are 8 और 8 1s are 8। हम ना सीक्वेंसली लिखेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो। अब 2 पे चेक करो। 2 4s are 8। 3 पे आता है? नहीं आता। 4 पे 4 2s are 8, ठीक है। 5 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता। 6 के टेबल में नहीं। 7 के टेबल में नहीं। 8 के टेबल में हाँ आता है ना। 8 1s are 8। अब हम जब वापस उसी नंबर पे आ जाते हैं ना, तो हमारे फैक्टर्स भी ख़त्म हो जाते हैं। जब हम वापस से सेम नंबर पे आ जाएंगे, हमारे फैक्टर्स भी ख़त्म हो जाएंगे। 1 2 4 और 8 क्या बन गया? ये कंपोजिट। चेक फॉर नंबर 9।
9 के लिए कैसे चेक करोगे? सेम प्रोसीजर, 1 9s आर 9, ठीक है, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 3 3s आर 9 and 9 1s are 9. How many factors does it have? 1 3 9, 3 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा हो गए तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा कंपोजिट। क्या बन जाएगा? कंपोजिट। आई होप अब आप 10 का तो इजीली चेक कर ही लोगे। कैसे करेंगे 10 का चेक? 10 का चेक कैसे करेंगे? 1 10s are 10, और 2 5s are 10, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 2s are 10, आगे आ जाओ, 10 1s are 10। कितने फैक्टर्स हो गए? काउंट करिए, 1 2 3 4, आ गए 4 फैक्टर, 2 से ज़्यादा हो गए तो ये क्या बन जाएगा? कंपोजिट। क्या बन जाएगा ये? कंपोजिट नंबर। ठीक है, खत्म करें फैक्टर्स मल्टीपल्स। प्राइम और कंपोजिट नंबर का भी डिफरेंस क्लियर हुआ। ठीक है, अब ना नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में वो होगा हमारा कि नंबर्स की और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। आई होप आप प्राइम और कंपोजिट का डिफरेंस क्लियर कर पाए होंगे। हम इनसे रिलेटेड और एग्जांपल्स चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, okay, in which we will discuss another types of numbers. Thank you and keep watching my channel.